بہت عرصہ پہلے ایک بہت دور دراز کی سلطنت میں ایک ملکہ کے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی سب سے اچھی سہیلی جو بہت خوبصورت تھی جنگل کے طلسم کی ملکہ کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بلایا۔ جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملکہ کو ملنے کے لیے سفر کر رہی تھی تو ایک مصیبت نازل ہوئی۔ ظالم ساحر ملکہ کے پیچھے پیچھے سلطنت تک آیا۔ او یہاں ہو تم، تمہارا وہ بیٹا کہاں ہے اور یہ خوبصورت بچہ کون ہے؟ کیا یہی ہے وہ؟ تم نزدیک آنے کی جرت مت کرنا، انہیں اسی وقت یہاں سے نکالو۔ اوہ، تم مجھے روکو گی؟ وہ کب تک مجھ سے دور بھاگیں گے؟ جب تک تمہارا بیٹا 21 کا نہیں ہو جاتا میں اس کا پیچھا کرتا رہوں گا۔ بہت سے سال گزر گئے تھے اس تاریخی لڑائی کے بعد۔ چلو اب ہم آپ کو کہانی کے اگلے حصے میں لے چلیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سلطنت سے زیادہ دور نہیں تھا، جہاں ایک کاشتکار اپنے بیٹے اسٹیفان اور اپنی بیٹی فیلیشیا کے ساتھ رہتا تھا۔ کاشتکار بہت غریب تھا اور اس پر ہمیشہ غربت چھائی رہتی۔ جب اسے یہ لگا کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو اس نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ میرے پیارے بچوں، میں نے اپنی پوری زندگی تمہیں اپنے دل سے محبت کی ہے۔ میری صرف اتنی ہی جائیداد ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ایک مرغی، 2 اسٹول، گھاس کی چٹائی، گلابوں کا گملہ اور چاندی کی یہ انگوٹھی۔ میری پیاری بیٹی، میں تمہیں گلابوں کا گملہ اور یہ چاندی کی انگوٹھی دینا چاہتا ہوں، باقی سب تم رکھ لو میرے بیٹے۔ ابا جان، مجھے کسی بھی جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف منتظر ہوں تو آپ کی محبت اور آپ کی دعاؤں کے لیے۔ میری پیاری بیٹی، اتنا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اور کاشتکار نے اپنی آخری سانس لی۔ بھائی نے دونوں اسٹول، وہ چٹائی اور مرغی لے لی اور فیلیشیا کو گلابوں کا گملہ دیا اور چاندی کی انگوٹھی بھی۔ اس انگوٹھی سے شاید تمہیں کچھ سکے ملیں گزارا کرنے کے لیے۔ نہیں بھیا، ابا جان نے یہ انگوٹھی مجھے دی ہے، یہ ان کی نشانی ہے جو میرے پاس بچی ہے، میں اسے کبھی جدا نہیں کروں گی۔ جیسی تمہاری مرضی، پر مجھ سے امید مت کرنا کہ میں تمہارا خرچہ دوں گا بہن۔ آج کے بعد تمہیں خود سے گزارا کرنا ہوگا۔ مرغی، باغ اور سبزیاں اور باقی سب صرف اور صرف میرے ہیں، یہاں تک کہ مرغی کے انڈے بھی۔ فیلیشیا بہت مایوس ہوئی اپنے بھائی کو اتنا خود غرض ہوتے دیکھ کر۔ اس نے سوچا کہ وہ کبھی دوبارہ خوشی اور محبت نہیں محسوس کر سکے گی۔ جب اس نے گلابوں کی جانب دیکھا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا رہے تھے۔ میرے پیارے پھولوں، کیا تمہیں بھی محبت اور پرورش کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا تم بھی میری طرح مایوس ہو اور پھر بھی تم اتنی دلکش مہک دیتے ہو؟ تم پوری دنیا کی سب سے خوبصورت مہک ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میرے پیارے پھولوں، اور میں ہمیشہ تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ آج کے بعد ہم سب سے اچھے دوست ہوں گے اور میں تمہاری پرورش کروں گی۔ تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ 1 منٹ رکو، میں ابھی تمہارے لیے پانی بھر کر لاتی ہوں۔ فیلیشیا جنگل کے پاس ایک اجڑی ہوئی حویلی کے فوارے کی طرف دوڑتی ہوئی گئی۔ اس نے فوارے کے پاس پانی بھرنے کے لیے اپنا گھڑا رکھا ہی تھا کہ اس نے بہت ہی خوبصورت موسیقی سنی اور ایک شاندار نظارہ دیکھا۔ فواروں کے پیچھے کوئی ہے، مہربانی کر کے تم جو کوئی بھی ہو یہاں آؤ، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محترمہ، مجھے معاف کریں، میرا ارادہ جاسوسی کرنے کا نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ ٹھیک ہے میری بچی۔ اوہ، تم اتنی دلکش اور خوبصورت ہو، کیا تم نے کھانا کھایا؟ نہیں محترمہ۔ تو پھر میرے ساتھ بھوجن کرو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ آپ بہت رحم دل ہیں محترمہ۔ جنگلوں کی ملکہ نے خود اپنے ہاتھوں سے فیلیشیا کو کھانا پروسا۔ کھانے کا ذائقہ اس کسی بھی چیز سے زیادہ ذائقہ دار تھا جو فیلیشیا نے آج تک کھائی تھی۔ جب کھانا ختم ہوا، بہت بہت شکریہ محترمہ۔ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، پر ایک گلابوں کا گملہ ہے جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔
ये गुलाब पर कशिश महक वाले फूल हैं जो आज तक मैंने देखे नहीं। मैं आपको ये तोहफे में देना चाहूंगी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं मेरी अजीजा, पर अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे गुलाबों का गमला कबूल करने में खुशी होगी। शुक्रिया मोहतरमा। अगर आप 1 मिनट रुके तो इस बीच में घर दौड़ कर जाऊं और उसे ले आऊं। हाँ, मैं इंतजार करूंगी, जितना भी चाहे वक्त ले लो। तो फेलिशिया घर भागी अपने गुलाबों का गमला लाने के लिए, पर जब वो खिड़की पर गई गमला लेने के लिए तो उसे वहाँ एक बंद गोभी मिली। स्टेफान ने गुलाबों का गमला चुरा लिया था और उसकी जगह पर एक बंद गोभी रखी थी। मायूस होकर फेलिशिया जंगलों की मलिका के पास गई। मोहतरमा, मुझे मुआफ करना, पर ऐसा लगता है कि मेरे भाई ने मेरे गुलाबों का गमला ले लिया है, पर मेहरबानी करके ये कबूल करें। बस यही मेरे पास है और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप इसे रखें। पर अगर मैं ये ले लेती हूँ तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मोहतरमा, आपकी दोस्ती मेरे लिए काफी है। तो ठीक है, तुम फिक्र न करना मेरी अजीजा, तुम्हारी सारी दिक्कतें कुछ ही दिनों में दूर होंगी। ये रहा तुम्हारा घड़ा, तुम इसे अपने साथ ले जाना भूल गई थी। ओह, बस मेरी तरफ से जुदाई का एक तोहफा, और हम फिर मिलेंगे मेरी अजीजा। हम 21वें सूरज के निकलने पर मिलेंगे, याद रखना। और फिर रोशनी की एक चमकार के साथ जंगलों की मलिका गायब हो गई। फेलिशिया वहाँ हैरत ज़दा खड़ी रही। फेलिशिया घड़ा लेकर गई, पर उसका दिल तड़प रहा था अपने गुलाबों के लिए, क्योंकि वो उनसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। उसने एक बंद गोभी को देखा जो वहाँ पड़ी थी जहाँ उसके गुलाब हुआ करते थे, और तैश में आकर उसने बंद गोभी हाथ में ली और उसे खिड़की से बाहर फेंकना चाहा, जब उसने एक अजीब आवाज सुनी। मत फेंको, मेहरबानी करके मुझे मत फेंको। तुम बंद गोभी हो और तुम बोल सकते हो? इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला था, पर शायद ये 21वें उगते सूरज की आमद की वजह से है। अगर तुम मुझे मेरे साथियों के साथ वापस बो दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे गुलाब तुम्हारे भाई स्टीफन के पलंग के नीचे हैं। तो फेलिशिया बाग में गई और बंद गोभी को वापस बो दिया। वो अपने भाई के सोने के कमरे में भागी, जहाँ उसने चूहों की एक पूरी फौज देखी जो गुलाबों तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। फेलिशिया ये देखकर खौफजदा हो गई। वो बस यही सोच रही थी कि किस तरह वो अपने गुलाबों को बचाए। इसमें जरूर कोई तिलिस्म होगा। मेरे प्यारे फूलों, तुम ठीक हो? मैं बहुत फिक्रमंद थी। ओह हाँ, वो है, वरना वो और क्या होंगे। तुम एक मुर्गी हो जो बोल सकती है। मुझे पता नहीं कैसे, इससे पहले मैं कभी नहीं बोली थी। ये जरूर 21वें सूरज के उगने की आमद होगी। पक पक। ये 21वां सूर्योदय क्या है? खैर, मैं कभी भी कोई राज छुपा नहीं सकती थी, इसलिए जंगलों की मलिका ने मुझे एक मुर्गी में तब्दील कर दिया। तुम देखो, मैं स्टेफन की माँ हूँ। एक दिन एक दूर दराज इलाके में एक मलिका हमारे दरवाजे पर आई। उसके पास एक इतनी खूबसूरत बच्ची थी। वैसे खूबसूरत बच्ची मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी, और मैंने बहुत सी देखी थी क्योंकि मैं एक नर्स थी। मलिका बहुत बीमार थी और बहुत थक गई थी, पर मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी परवरिश अपनी बेटी बनाकर करूंगी। फिर एक दिन जंगलों की मलिका गुलाबों का एक गमला और एक अंगूठी लेकर यहाँ आई, और उसने मेरे शौहर से कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें दे दिया जाए। वह अपने साथ मलिका को ले गई, और जाने से पहले उसने मुझे एक मुर्गी में तब्दील कर दिया ताकि मैं किसी को ये राज न बता सकूं 21वें सूरज के उगने से पहले की रात तक। और बस इतना ही मैं जानती हूँ। ओ देखो, सूरज उग ही गया। जब फेलिशिया ने जंगलों की मलिका को नुमाया होते देखा, वो उससे मिलने के लिए बाग में दौड़ी, गुलाबों को पीछे छोड़ते हुए। मलिका उसके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। ओह मेरी प्यारी फेलिशिया, वो सवेरा जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही थी। देख रही हूँ नर्स ने तुम्हें बता दिया, पर उसने अभी हर बात नहीं बताई है। मोहतरमा, मेरी अम्मी कहाँ है? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? मैं खुद तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। वो एक महफूज जगह पर है। ये सब मेरी वजह से हुआ कि जालिम साहिर ने तुम पर हमला किया। जंगलों की मलिका होने के नाते मुझे कुदरत को महफूज रखना था उस जालिम साहिर से, जो इस पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वो मुझे हरा नहीं सका। उसने मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहा, मेरे बेटे को अगवा करके, क्योंकि जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता उसको मेरी तिलिस्मी ताकतों की विरासत नहीं मिलेगी। मुझे इल्म था कि वो जालिम साहिर उसे तलाशता रहेगा, और तुम, क्योंकि
तुमने उसे तलाश लिया था। मैंने तुम्हारी एक मामूली काश्तकार की लड़की की तरह परवरिश होने दी ताकि वो तुम्हें कभी न ढूंढ सके। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है मोहतरमा? क्योंकि तुम्हारे किस्मत में मेरे बेटे की सच्ची मोहब्बत बनना लिखा हुआ था और उस मोहब्बत की ताकत उसको महफूज रखती। तो आपका बेटा अब कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मेरी अजीजा। तुम्हारी मोहब्बत ने उसकी हिफाजत की है मेरी अजीजा। मेरी मोहब्बत? पर मैंने इसे इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, तुमने देखा है। तुमने इससे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मोहब्बत की है। गुलाबों का वो गमला, गुलाब के फूलों का गमला? मैंने अपने बेटे को गुलाबों के गमले में तब्दील कर दिया था ताकि वो तुम्हारे करीब रहे जब तक कि वो 21 का नहीं हो जाता। आज उसके 21वें साल का सूरज निकलने वाला है। देखो, 21वां सूर्योदय। और जालिम साहिर, उसका क्या हुआ? चूहे उसकी फौज थे और बंद गोभियां भी। और जब मेरा बेटा 21 का हो गया है और उसे मेरी सारी कुव्वतें विरासत में मिल गई हैं, जालिम साहिर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तुम्हारी मोहब्बत उसकी हिफाजत करेगी। ये करेगी, है ना? वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, और हर गुजरते दिन के साथ ये मोहब्बत और गहरी होती जाती है। क्या तुम मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल करोगी? हाँ, मैं हूँ। अब तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर हो गई हैं मेरी अजीजा, और अब तुम अपनी हक की जगह पर शहजादी बनकर वापस आओगी। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले चलूंगी और हम तुम्हारा निकाह जश्न मसरत और शान शौकत से करेंगे। पर उससे पहले मुझे बताओ कि तुम अपने बेरहम भाई को कैसे सजा देना चाहोगी? ऐसा मत करना मोहतरमा, मैं उसे मुआफ करती हूँ। उसने तुम्हारी वो इकलौती चीज ले ली जिससे तुम्हें मोहब्बत थी, और तुम उसे माफ करोगी? मैं इतनी खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मैं चाहती हूँ हर कोई खुश रहे। उस रहमदिल नर्स को भी अपने असली वजूद में तब्दील कर दो और उसे और उसके बेटे स्टीफन को चैन और सुकून से रहने दो। तो ठीक है मेरी अजीजा, उन्हें फिर कभी कोई कमी नहीं होगी और स्टीफन एक रहमदिल और मोहब्बत से आलदा एक शाइस्ता इंसान बनकर रहेगा और अपनी अम्मी के लिए एक नेक बेटा बनकर। तो सब कुछ ठीक हो गया। शहजादी फेलिशिया का निकाह शहजादे गुलाब के साथ हो गया और वो हमेशा अमन चैन से रहने लगे।